السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایکسرسائز نمبر 10.2 کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز نمبر 10.2 ہے۔ تو اس کا جو پہلا کویشچن ہے وہ ہے بائیسیکٹ دی فالوئنگ اینگلز۔ یہ بائیسیکٹ کا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بائیسیکٹ کا مطلب ہے کہ آدھا کرنا۔ تو یہ پہلے تو ہم ایک لائن سیگمنٹ کو بائیسیکٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز میں جو پہلا پارٹ ہے وہ ایک اینگل کو بائیسیکٹ کرنا ہے، مطلب کہ ایک اینگل جو ہے اس کو آدھا کرنا ہے۔ جیسے پہلے پارٹ جو ہے وہ 55 کا اینگل بنا ہوا ہے، یہ آگے 70 کا ہے، جتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بائیسیکٹ کرنا ہے، آدھا کرنا ہے۔ یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو اس طرح کا بنا لیں۔ یہ میں نے بھی بنایا ہوا ہے، یہ اینگل بنا ہوا ہے، اس کو صرف بائیسیکٹ کرنا مقصد ہے۔ تو بائیسیکٹ کرنا میرا دھیان سے دیکھ لیں، بہت ایزی ہے۔ اس طرح یہ کمپاس لیں، اس میں پینسل میں نے ایڈجسٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس کو یہ کمپاس کی جو نیڈل ہے، نیڈل کو جہاں اینگل بنا ہوا یہ اینگل ہے، یہ اینگل 55 کا ہے، یہ اینگل کا ایک آرم ہے، یہ دوسرا آرم ہے، ان کے اندر جو بننے والا اینگل ہے وہ اس کو بائیسیکٹ کرنا ہے۔ یہ 55 ڈگری کا ہے۔ تو اس کو بائیسیکٹ کرنے کے لیے پہلے یہ پرکار اتنی کو اندازے سے کھول لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں رکھ لیں، اس کے اندر ایک قوس لگانی ہے جو دونوں کو ٹچ کرے، دونوں آرم کو ٹچ کرے۔ یہ پہلے بھی بنی ہوئی ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اس طرح لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح یہ جو ہم نے ایرک لگائی ہے جس نے دونوں آرم کو ٹچ کیا ہے، اب پرکار کو مزید کھولنا ہے، بے شک کھول لیں، لیکن یہ جتنے ریڈیس کی یہ کھل گئی ہے، یہ دو ایرک لگانے ہیں، ایک ادھر رکھنا ہے۔ ان پوائنٹ کا نام رکھ لیں، بے شک کوئی رکھ لیں، اس کا نام ایل رکھ لیں، ایم رکھ لیں۔ تو یہ دونوں پوائنٹس میں سے پہلے ایک پوائنٹ پر نیڈل رکھنی ہے، یہ پرکار رکھ لی ہے، تو ایک ایرک لگ گئی، ایک ایرک لگانی ہے۔ تو اتنا ہی ریڈیس کا مطلب ہے یہ جتنی یہ کھلی ہوئی ہے اتنی رکھنی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں۔ اب یہ دوسرے پوائنٹ پر رکھ لینا ہے، دوسرے پوائنٹ پر رکھ کے ایک ایرک لگائیں گے، جو دوسری جو پہلے ایرک لگائی ہے اس کو اس نے کراس کر دیا۔ تو جس پوائنٹ پر اس نے کراس کیا ہے اسی پوائنٹ کو، اس پوائنٹ کو اور یہ او، اس کی نوک جو اینگل بنا ہوا ہے اس کے درمیان میں یہ اسکیل سے لائن لگا دیں، اور یہی بائی سیکٹر ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم لائن سیگمنٹ کو بائی سیکٹ کرتے رہے ہیں، اس طرح یہ اینگل کو بائی سیکٹ کر دیا ہے۔ یہ بائی سیکٹر ہے، یہ 55 کا اینگل تھا یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی کہ یہ پورا جو اینگل ہے ایل اور ایم قوس لگائی، اس کے اندر جو بننے والا اینگل تھا وہ 55 کا تھا۔ اب یہ بائیسیکٹ کیا ہے تو یہ آدھا رہ گیا، یعنی 55 کو 2 سے ڈیوائڈ کر لیں تو اس سے مطلب آدھا، یہ آدھا ادھر رہ گیا، آدھا ادھر رہ گیا، یہ بائیسیکٹ ہے، یہ اسے بائیسیکٹ ہے۔ اس طرح یہ سارے کویشچن جو پارٹ 1 کے ہیں، یعنی کہ کویشچن نمبر 1 کے پارٹ 1 2 3 4 5 6 یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، اس طرح کرنے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ اینگل بنانے، یہ انشاءاللہ جو اگلا نیکسٹ کویشچن آ رہا ہے اس میں یہ اینگل بنانے بھی آ جائیں گے، اور یہ اینگل بھی اس طرح بن سکتے ہیں۔ تو اس کو بنانا ہے، کویشچن نمبر 2 کر لیتے ہیں۔ یہ ایک جیسے ہی ہیں، سیم ہے۔ بائیسیکٹ کرنے کا صرف میتھڈ طریقہ آنا چاہیے، تو اگر بندے کو میتھڈ آ جاتا ہے تو سارے پارٹس کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ پہلے سے اینگل یہ بنے ہوئے ہیں، ان کو بائیسیکٹ کر لیں، یہ اینگل بنا کے اس کو بائیسیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ نیکسٹ جو کویشچن ہے 10.2 کا اصل مین
वही है। ये बाइसेक्ट करना आ जाए तो ये बनाने भी इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये सामने नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहले जो है वो 30 का एंगल है, 30 का एंगल बनाना है। और बनाना किस तरह है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपास। तो ये कंपास को इस्तेमाल करते हुए ये एंगल बनाने हैं। एक और भी तरीका है एंगल बनाने का, वो ज्योमेट्री बॉक्स में एक होता है डी जिसे कहते हैं, या प्रोटेक्टर है, तो वो डी से भी बन जाते हैं। लेकिन ये स्पेशली क्वेश्चन ये है कि कंपास से बनाने हैं। तो कंपास से बनाने के लिए हमें ये तरीका आना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये करते हैं। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। एंगल बनाना है 30 का। ये एंगल का साइन है, एंगल 30 बनाना है। ये ऊपर छोटा सा डॉट होता है, इसका मतलब कि ये 30 डिग्री का एंगल है। तो ये 30 का बनाना है। सबसे पहले स्केल के साथ स्केल लें और एक लाइन लगा दें मुनासिब सी। ये लाइन लगा दी। एक लाइन लग गई, इसका नाम रख लें, इसका नाम इस साइड का वो रख लें, इसका कोई नेम रख लें, ये रख लें, कोई मसला नहीं। इस लाइन पर हमने एंगल जो बनाना है वो 30 का बनाना है। हमें पता होना चाहिए कि जब भी ये जितने रेडियस की एक दफ़ा खोल लेनी है, ये उनके प्रकार को खोला है, ओपन किया है, तो इसको फिर छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ेंगे तो फिर ये एंगल हमारा जो है ख़राब हो जाएगा। जितनी मुनासिब इसको ओपन करना है वो कर लें। तो ऐसे इसको पॉइंट ओ पर रख लें। ओ पर रखना है तो एक एरक लगानी है। ये एरक लग गई। जितने रेडियस की ये एरक लगाई है उतने ही रेडियस की, इसको छेड़ना नहीं, बिल्कुल इसी तरह जितनी खुली है उतनी खुली रहे। इस पॉइंट पर रखना है। इस पॉइंट का नाम बेशक कुछ रख लें, एक्स रख लें, एक्स रख लें। तो एक्स पर रख के उतनी रेडियस की, जितनी भी ये पहले रेडियस की ये ओस लगाई है, एरक लगाई है, उतनी ही रेडियस की अगर लगाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, ये ज़हन शिनशन कर लें कि ये 60 का एंगल बनता है। अगर इस लाइन को इस लाइन के साथ मिलाकर लाइन लगा दें तो ये 60 का एंगल बनेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। इसको लाइन लगाएं तो ये 60 का एंगल बनता है। इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं डॉट्स, क्योंकि हमें 60 का नहीं चाहिए। ये हमें सिर्फ 60 का बनाना पड़ता है 30 का बनाने के लिए। तो ये हमारा मतलूबा जो है एंगल नहीं है, ये 60 का बना है। यहाँ लिखेंगे तो ये 60 का एंगल बनना है, हमें चाहिए 30। तो 60 को अगर बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट का मतलब हाफ करना, तो आप हम पहले सीख चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि इसको बाइसेक्ट कैसे करना है। इसको बाइसेक्ट करना है तो ये 60 का एंगल है तो ये 30 का रह जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब एक आधा होगा जाएगा। तो इसको जिस तरीके से पहले सवाल किया है उसको बाइसेक्ट किया है, इस तरह इसको भी बाइसेक्ट करना है। अब बेशक इसको थोड़ा सा खोल लें, लेकिन जितनी खोल ली है दोबारा आर्क जब लगानी है तो इतनी रहनी चाहिए। ये देखें, ये क्रॉस लग गया, ये आर्क एक लगी, दूसरी इस पॉइंट पर आके जहाँ पे ये एंगल 60 का बन रहा है। 60 का दूसरा जो आर्म है, बाजू है इसका एंगल का, वहाँ पर आके ये दोनों
दोनों आर्क लग गई। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 60 को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको लाइन लगा दें। इस पॉइंट को यहाँ जो क्रॉस कर रहा है, ये बड़े ध्यान से इसको लगानी है लाइन। अगर थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो ये एंगल जो है वो हमारा सही नहीं बनेगा। ये लाइन लगा दें। ये थोड़ी सी पेंसिल नीचे गिरने से उसका मुंह थोड़ा मोटा हो गया। पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये जी, ये पेंसिल बारीक हो गई है। तो ये जो बनने वाला एंगल है ये 30 का है, ये भी 30 का है, ये भी 30 का है। 30 और 30 प्लस 30 60, ये 60 है। 60 को हमने बाइसेक्ट किया है, तो ये हमारा जो मतलूबा जो है वो एंगल ये हमारा 30 का बन गया। तो इस तरह ये हमारा एंगल 30 का बन गया। यहाँ से ये लाइन लग रही है, ये ऐसे। चलें नेक्स्ट भी कर लेते हैं, 60 का बना लेते हैं। 60 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। एंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है वो 60 का है, एंगल 60। का बिल्कुल इजी है। पहले हमने 60 का बना के उसे बाइसेक्ट किया तो 30 का बना है। तो अब जो इसको बाइसेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ये तो है ही 60 का। ये ऐसे लाइन लगा दें, एक लाइन लग गई। इसका नेम रख लें, प्रकार को ओपन करें। इसकी नीडल पॉइंट ओ पर रखें, ये ऐसे, ये ऐसे रखनी है ऊपर। इसको एक कॉस लगा दी, ये कॉस लग गई। इसका नेम कोई रख लें, एक्स रख लें। और एक्स जो पॉइंट है अब वहाँ नीडल रखनी है, उतना ही रेडियस रेडियस का मतलब है कि ये जितनी पहले ये ओपन की थी प्रकार बिल्कुल उतनी रखनी है। उतनी रख के जब ये एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 का, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ये 60 का एंगल बन जाएगा। इसको इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो ये 60 का एंगल बन जाएगा। ये इसको मिला दें तो ये एंगल जो बनने वाला है ये 60 का एंगल बन गया। इसका नेम भी कोई रख लें, इसका बेशक एल रख लें, ये ओ है, ये एम रख लें, कोई मसला नहीं, नेम रख लें, कोई मसला नहीं है। बाकी ये 60 का एंगल बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 है। ये एंगल बनाना है 120 का। का बनाना है तो सेम उसी तरह एक लाइन लगा दें, ये लाइन लग गई। इसका नेम रख लें ओ ई।
प्रकार खोलनी है मुनासिब सी, वो पर रखना है। एक एरक लगा लें, ये एरक लग गई, ये एरक लग गई, इसका नाम एक्स रख लें, कोई नेम रखा जा सकता, कोई मसला नहीं, इसका कोई इशू नहीं। तो जितना ये रेडियस यानी जितना ये पहले एरक लगाई थी, जितनी खुली थी बिल्कुल उतनी रखनी है, ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर फ़र्क आएगा तो ये एंगल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो एक दफ़ा ये कॉस लगाएंगे, एरक लगाएंगे तो ये 60 का बनेगा। तो हमें पता है 120 का बनाने के लिए 60 + 60 120 होता है। तो एक दफ़ा ये एरक लगाएंगे तो ये 60 बनेगा, और 60 से आगे फिर एक एरक लगाएंगे तो ये 120 का बन जाएगा। ये 60 यहाँ तक 60 है, और आगे फिर एक कॉस लगाया फिर 60 है, तो 60 + 60 120। तो इन पॉइंटों को इस पॉइंट को मिलाना है, इस पॉइंट को मिला दें आपस में। ये इसका दूसरा आर्म, दूसरा बाजू कह सकते हैं, दूसरा आर्म इसका एंगल का। तो ये जो बना है एंगल यहाँ से यहाँ तक, इनके दरम्यान में जो एंगल बना है वो 120 का है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट इसका है वो 4 है। तो ये एंगल बनाना है 90 का। तो सेम एक लाइन लगा दें, किसी भी मैच की लगा लें, कोई मसला नहीं है। हमारा असल में मकसद है एंगल बनाना, इसकी पैमाइश से हमें कोई गर्ज नहीं, छोटी हो जाए बड़ी हो जाए कोई मसला नहीं है, नेम कोई रख लें कोई मसला नहीं है। चलें जी, ये इसी तरह प्रकार को ये उसकी नीडल को यहाँ रखें, इसका नाम रख लें, कोई वो रख लें, ये रख लें, कोई मसला नहीं। तो ये पॉइंट ओ पर इसकी नीडल को रखें जी। ये एक कॉस लग गई है, ये एर्क, एर्क इंग्लिश में कहते हैं आर्क, और उर्दू में कॉस कहते हैं। ये लग गई। एक दफ़ा जब ये पहली आर्क लगानी है तो ये 60, ठीक हो गया। 60 से आगे फिर एक और लगानी है तो ये बनेगा 120। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ तक 60 का बन गया, और 60 के आगे यहाँ से यहाँ तक फिर 60 है। तो हमने बनाना है 90 का। तो 90 का हमें पता है कि ये 60 है, 60 में 30 और शामिल करेंगे तो ये हमारा 90 का बनेगा। तो इसका मतलब है इस यहाँ 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो 60 है इसको बाइसेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा 90 का बनेगा। तो इसको बाइसेक्ट यहाँ से भी किया जा सकता है, इन दोनों को यहाँ से बाइसेक्ट बेशक कर लें। अगर ये लाइन लगानी है 60 तक तब भी कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक जो बनता है ये डॉट डॉट्स लगा लें, क्योंकि हमारा ये मतलूबा नहीं है। तो यहाँ तक जो बनता है ये 60 का है, ये भी डॉट डॉट्स लगा लें। ये डॉट डॉट्स जो है ये 60 है, इससे आगे ये 60 प्लस ही यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इस बाजू के एक बाजू तो ये है इसका आर्म, अगर इसको शामिल करें तो ये होता है 60, अगर इसको छोड़ दें इसको शामिल करें तो ये बन जाता है 120, यहाँ तक ये सारा 120। लेकिन हमें जो चाहिए वो 90 का चाहिए। तो 60 ये है, अगर इसको बाइसेक्ट कर दें तो ये 30 इसमें शामिल हो जाएगा, 30 को शामिल करेंगे तो 60 + 30 90 का बन जाएगा। तो इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। बाइसेक्ट करने का वही तरीका है जो पहले हम कर चुके हैं कि पहले यहाँ नीडल रखें, इसको ये एक एर्क लगा ली, ये एक एर्क लगी, फिर इसको बाइसेक्ट करना है तो दूसरी इस जगह रख के इसको एर्क लगा लें।
तो ये बाइसेक्ट हो गया, ये 30 का बन गया। ये बिल्कुल सीधा इसके अंदर से गुजरनी चाहिए लाइन, तो ये हमारा 90 का बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना है वो 90 का है, तो यहाँ हम 90 लिख सकते हैं। ये 90 एंगल है। यहाँ से यहाँ तक ये हमने पूरी लाइन लगाई है, ये हम डॉट्स लगाए हैं। डॉट्स इसलिए लगाएं कि ये हमारा मतलूबा नहीं है, हमारा जो असल में हमें चाहिए जो एंगल वो 90 का, ये लाइन हमें पक्की लाइन लगानी चाहिए। तो ये 90 का एंगल बन गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 5 है, एंगल 45 है, एंगल 45। स्टूडेंट ये 45 का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 का जो एंगल है उसको फिर बाइसेक्ट करेंगे, तो 90 का जो हाफ होता है वो 45 होता है। तो पहले 90 का बनाएंगे। 90 का हम पीछे बना चुके हैं। जिस तरह ये 90 का बनाया है, ये बिल्कुल इस तरह का बना के इसको बाइसेक्ट करना है। अगर इसी को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले नया बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। उस तरह ये लाइन लगाएं। एक लाइन सेगमेंट बन गई, लाइन लग गई। इसका नाम रख लें, नाम अपनी मर्ज़ी से रख लिया करें, जितने पॉइंट हैं वो नाम रख लें, कोई मसला नहीं है। तो इसको ये पॉइंट ओ पर आके ये एक एरक लग गई। ये इसका नाम एक्स रख लें। तो एक्स की पॉइंट से रख के एरक तो कार उतनी खुली रखनी है, जितने ये पहले वाली एरक लगाई है उतनी खुली रखनी है, उतना ही रेडियस होना चाहिए। ये एक एरक लग गई, ये बन गया 60 का। 60 के आगे फिर 60, तो ये 120 हो गया। तो ये 60 ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये 60 है। इस 60 को बाइसेक्ट करना है, तो ये हमारा 90 का बन जाएगा। अब इस प्रकार को बेशक थोड़ा खोल भी लें, कोई इशू नहीं है। ये आप एक एरक इधर आ गई, एक यहाँ रख के एरक लगानी है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले पिछला पार्ट जो है वो हमने बनाया है कि ये एंगल जो है वो 90 का बना है। तो 90 का बना है, तो हमारा 90 का जो इधर डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड 45 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 का एंगल है, लेकिन हमें चाहिए 45। तो 90 को ऑफ करना है, तो यहाँ से लेकर एक पॉइंट ये है, इसका नाम कोई रख लें, बी रख लें। ये पॉइंट है और ये एक्स पॉइंट है। ये दो पॉइंट को बाइसेक्ट करना है। इन दो पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 45। तो ये अब इसको बेशक थोड़ा सा खोल भी लें, लेकिन जितनी खोल लेनी है ये ओपन करनी है, दोबारा इसको नहीं छेड़ना। ये एक्स पर रख के एक एरक लगी और बी पर रख के दूसरी। जो जिन दो पॉइंट को बाइसेक्ट करना होता है सिर्फ उन दो पॉइंट पर रख के एरक लगाते हैं। इसको यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 90 का, इसको ऑफ करना है, बाइसेक्ट करना है। तो पहले इधर रखेंगे, फिर इधर आके ये क्रॉस लगाएंगे। तो ये लगी है, इधर क्रॉस इसने किया है, इसको लाइन लगा देंगे। ये लाइन लग गई। ये हमारा बन गया 45 का। यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे, इस बाजू को समझेंगे तो ये 90 बन जाएगा। और ये हमारा असल में मतलब ये बाइसेक्ट किया है, तो ये 45 डिग्री का ये हमारा एंगल बन गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो 45 6 पॉइंट है, 6 पार्ट, और एंगल जो है वो 75 डिग्री का है।
इसके लिए भी बिल्कुल इस तरह ये लाइन लगाएं, लाइन लग गई। प्रकार को मुनासिब सा खोल के ओपन करके एक एरर लगाएं, या ये बन गई जी, एक एरक लग गई। इसका नेम भी रख लें, ओ ई या एक्स रख लें बेशक। एक्स पॉइंट पर रख के उतनी ही रेडियस की उतनी ही प्रकार खुली रहे। रेडियस का मतलब है कि जितनी ये पहले खोली है ओपन की है उतने रेडियस उतनी रेडियस की ये लाइन लग गई, एरक लग गई, ये बन गया 60 का। तो 60 से आगे ये हमारा बन गया 120, लेकिन हमें चाहिए 75। तो सिक्सटी में अगर 15 शामिल किया जाए, 15, 60 में 15 शामिल किया जाए तो इसका मतलब है ये 75 बनेगा। तो हमें इसका मतलब है 60 के आगे 15 यानी 15 इसमें शामिल करेंगे। 60 में 15 शामिल करें तो 75, 75, 75। तो सबसे पहले हम ये इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बनेगा 60 के आगे, इसको बाइसेक्ट करें, यहाँ से ये दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करना है। तो ये हमारा बन जाएगा, ये डॉट लगा दें क्योंकि ये हमारा मतलूबा नहीं है एंगल, ये 90 का बनता है। तो ये 90 इस तरह बना है कि ये 60 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 है। 60 + 30, 60 + 30 90 बना है। तो इसका मतलब यहाँ 60 है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 है। तो 30 को ऑफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये 15 मीन 15 ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को इसका नाम रख लें, कोई रख लें, एल रख लें, इसका नाम एम रख लें। तो ये एल और एम पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे तो ये 30 से 15 बन जाएगा। तो जो 15 इसमें शामिल होगा 60 में तो ये 75 बन जाएगा। तो इसको बाइसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट पर एक रखें, एक उस एरक लगा लें, ये एरक लग गई। एक यहाँ रख के ये इसने क्रॉस किया है, इसका नाम कोई रख लें, बी रख लें। तो ये बी पर दोनों ने क्रॉस किया है तो यहाँ रख एक लाइन लगा दें। ये यहाँ पे इस लाइन को पक्की लाइन लगानी है क्योंकि हमें यही मतलूबा जो हमारा एंगल था वो बन गया है। यहाँ तक 60 है, 60 के आगे यहाँ तक जो 90 का बना 30 था, 30 को हमने बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब ये 15 हो गया। 60 प्लस ये 60 है यहाँ तक, तो 60 + 15 अगर इसको प्लस करें तो ये टोटल यहाँ तक जो बन जाएगा वो 75। ये एंगल हमारा जो मतलब है वो 75 बन गया। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 7। ये एंगल बनाना है 105 का। स्टूडेंट ये बड़ा ध्यान रखना है
کہ صاف رکھنا ہے کہ یہ اینگل کس طرح بنیں گے. 105 ہے بالکل اسی طرح یہ لائن لگائیں. لائن لگ گئی, اس کا نام رکھ لیں, وہ رکھ لیں, یہ رکھ لیں. یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے. اسی طرح یہ پرکار کھول لیں, قوس لگانی ہے. یہ ہم آپ پہلے سیکھ چکے ہیں, کافی سیکھ چکے ہیں. امید ہے کہ آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ قوس لگ گئی, آرک. اس کا نام رکھ لیں, ایکس رکھ لیں. اس طرح یہ جتنی یہ پہلے کھولی ہوئی تھی بالکل اسی طرح اتنی رکھنی ہے, اتنے ریڈیس کی رکھنی ہے, ایکس پوائنٹ پہ رکھنی ہے. تو یہ ہمارا بن جائے گا 60. یہ 60 بن گیا. تو اس طرح یہ اس سے آگے جائیں گے تو یہ بن جائے گا 60 + 60 120. تو 120 میں سے اگر 15 کو مائنس کر دیں تو یہ 105 کا بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے اس کو بائیسیکٹ کرنا پڑے گا. یہ اس کو بائیسیکٹ کریں, جس طرح یہ 90 کا اینگل بنایا ہے 90 کا اینگل بنائیں. یہ ایرک ایک لگ گئی, پھر یہ دوسری لگ گئی. تو اس کو لائن ڈاٹس لگانے ہیں, فل نہیں لگانی لائن, کیونکہ یہ ہمارا مطلوبہ اینگل نہیں ہے. یہ یہاں سے یہاں تک بن گیا 90. تو یہ 90 ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے 60 کو بائیسیکٹ کیا ہے, تو یہ بھی 30 ہے, ادھر بھی 30 ہے, یہاں سے ادھر بھی 30 ہے. تو اس 30 میں سے اگر اس کو بائیسیکٹ یہاں سے پوائنٹ, یہ اس پوائنٹ کا نام کچھ رکھ لیں, ایل رکھ لیں, ایم رکھ لیں. تو یہ دو پوائنٹ ہیں, ان دونوں پوائنٹ کو اگر آپ کریں گے بائیسیکٹ کریں گے تو یہ 15 90 میں شامل ہو جائے گا. تو 15 جو ہے 90 میں شامل ہوگا تو یہ ہمارا 105 بن جائے گا. تو اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کو بائیسیکٹ کرنا ہے. تو بائیسیکٹ کرنے کے لیے دونوں پوائنٹ کو پہلے ایک کو رکھ کے یہ ایرک لگ گئی, پھر اس کو رکھ کے یہ ایرک لگ گئی. تو اس نے جو کراس کیا ہے وہ اس جگہ کیا ہے, تو اس کا نام کوئی رکھ لیں, پی رکھ لیں. تو اس پی کو, پوائنٹ پی کو اس کے ساتھ ملانا ہے. تو یہ ہمارا مطلوبہ اینگل جو ہے, اس لائن کو پکی لائن لگانا ہے. یہ ہماری جو لائن ہے اس آرم کو اور اس آرم کے درمیان میں یہاں سے لے کر یہ سارا جو اینگل بن رہا ہے اس کے اندر یہ 105 کا ہوگا. یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک بنا ہے, یہ 60 تھا, 60 کے آگے یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک 30 کو بائیسیکٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں یہ 30 ہے, تو 30 یہ باقی جو 30 بچ گیا اس کو بائیسیکٹ کیا ہے تو 15 یہ شامل ہو گیا. تو ان کو ٹوٹل جو پلس کریں 60 + 30 + 15 تو 105 کا اینگل بن گیا. تو یہ ہمارا اینگل جو بن گیا وہ 105 کا اینگل بن گیا. تو نیکسٹ ہمارا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ہے 8 اور اینگل ہے 150 کنسٹرکٹ کرنا ہے. بالکل اسی طرح سیم اس کو لائن لگا دیں. اسی طرح یہ پرکار کھولیں اور ایک اس کا نیم رکھ لیں, وہ رکھ لیں, یہ رکھ لیں. تو یہاں رکھ کے اس کو پوائنٹ او پر ایک ایرک لگانی ہے, یہ ایرک لگ کے. اب یہ جتنا ریڈیس مطلب جتنی یہ کھلی ہوئی ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے, بالکل اس طرح رکھنا ہے.
تو اس کا نام ایکس رکھ لیں. تو یہاں سے رکھ کے جب یہ ایک ایرک لگائیں گے تو یہ بن جائے گا 60 کا. تو 60 کا مطلب ہے 60 سے آگے پھر یہ ایرک لگائیں گے تو یہ بن گیا 60 + 60 120. تو 120 سے آگے پھر یہ ایک رکھیں گے یہ بن گیا. تو یہ ہمارا بن گیا 180. یہاں 180 یہ لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ اسٹریٹ لائن ہے. تو اسٹریٹ لائن پر جو اینگل بنتا ہے وہ 180 کا ہوتا ہے. تو یہاں 60 + 60 120. 120 میں ہم نے 30 شامل کرنا ہے. تو 30 کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک 60 بنا ہے. تو 60 کو بائسیکٹ کریں گے تو ہمارا جو مطلوبہ جو ہمارا اینگل ہے وہ ہمارا 150 بن جائے گا. تو اس کو بائسیکٹ کر لیتے ہیں. پوائنٹ اس کا نام رکھ لیں, ایل رکھ لیں, ایم رکھ لیں. تو یہ ایل اور ایم کو پوائنٹ کو بائسیکٹ کرنا ہے. ایک لائن یہ لگ گئی, ایرک لگ گئی, دوسری تھوڑا بڑا کر لیں, ایک ادھر لگ گئی یہ. تو اس نے کراس ادھر کیا, اس کا نام پی رکھ لیں, بے شک پی ہے. تو ان دونوں کو ملانا ہے, یہ پی اور یہ او کو ملانا ہے. تو یہ ہمارا جو اینگل ہے وہ 150 کا بن جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک 60 ہے, تو یہاں سے یہاں تک یہ بھی 60 ہے. تو یہاں سے یہاں تک 60 تھا, اس کو بائسیکٹ کیا تو یہ اس کا مطلب یہ 30 کا رہ گیا. تو 60 + 60 120 120 + 30 150. تو یہ آرم یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ 150 کا ہمارا اینگل بن گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور اللہ حافظ.